Hello, my dear students. Welcome to mathematics class. Dear students, we are doing Unit 11 Algebra of your NCERT book, and we are running 11.1 exercise. Now, in previous video, I taught you the matchsticks pattern used to make the alphabets. Now, let us learn how to make the rules to count any number of things in the given conditions. So let's start with question number 3 of 11.1 exercise. Question number 3 says that cadets are marching in a parade. There are 5 cadets in a row. What is the rule which gives the number of cadets? Means कितने total participate किए कितनों ने वो कैसे पता चलेगा? If the number of rows are given to us, use n for the number of rows. So dear students, you can see the parade band of cadets in this picture. In this picture also you can see that few members are standing in first row and number of rows are also there. So in our question they have given us that there are 5 cadets standing in one row and number of rows are n. Then how to find out? मान लो यहाँ पर 5 कैडेट एक रो में हैं और टोटल 10 रोज हैं, तो टोटल हमारा कितने का बैंड हुआ? 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, 50 कैडेट्स का. इसी तरह हमें बोला है 5 कैडेट्स वन रो में और हमें n रोज हैं हमारे पास, तो टोटल कितने का होगा? वी विल मल्टीप्लाई इट, मीन्स 5 into n, 5n. Here also you can see a girls parade band is there. In this also girl cadets are there. So to count the total number of cadets, we will use the rule that there are 10 cadets standing in one row and total 10 rows are there. So 10 multiplied by 10, total 100 girl cadets have been participating in this parade band. So in this way we will do the question. So we will write the question as number of rows is equal to n, cadets in each row is equal to 5. Therefore total number of cadets is equal to, क्या लिख देंगे हम? It will be 5n. This will be your answer. Now question number 4 is exactly same. If there are 50 mangoes in a box, how will you write the total number of mangoes in term of the number of boxes? Use B for the number of boxes. So we will do this question also in the same way. Number of boxes B is equal to B. Number of mangoes in one box. Each box means one box is 50. So total how many mangoes are there? We will write 50 into B. Right? Like 50 mangoes हैं एक box में और हमारे पास 10 box हैं. तो 50 into 10, 500 आ जाएगा. Similarly, dear students, question number 5. A teacher distributes 5 pencils per student. एक बच्चे को 5 pencils दी. Can you tell how many pencils are needed given the number of students? तो अगर आपकी क्लास में 10 students हैं और एक बच्चे को 5 pencils देनी है, तो टोटल कितनी pencils खरीदनी पड़ेंगी? 5 into 10, 50 pencils. So use S for the number of students. So we will write same in as we have wrote the above questions. Number of students is equal to S. Number of pencils to each student to one student is equal to 5. So total number of pencils needed क्या आ जाएगा? Simple हम multiply कर देंगे 5 into S. 5 as pencils are needed. Now dear students, question number 6 is a bird flies 1 kilometer in 1 minute. एक मिनट में कितना हम फ्लाई कर गई? 1 किलोमीटर. मीन्स बड़ी ज़्यादा स्पीड है. कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स? यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर टेकिंग टी मिनट्स टाइम टेकन बाय बर्ड. टोटल टाइम बर्ड ने कितना लिया? टी मिनट्स. हो सकता है 60 मिनट लिए हों, 50 मिनट्स. स्पीड ऑफ द बर्ड हमें दे रखा 1 किलोमीटर पर मिनट. एक मिनट में 1 किलोमीटर ट्रैवल करती है. देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड क्या आ जाएगा? टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे. एंड you might have studied this formula in your science also. Speed is equal to distance upon time. तो यहाँ से भी आप देखते हो कि डिस्टेंस का अगर हमें फॉर्मूला निकालना हो तो हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो यहाँ भी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड क्या आ जाएगा? स्पीड, दैट इज 1 किलोमीटर पर मिनट
into time, t minutes, t minutes. तो ये क्या होगा, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 1 इंटू टी, टी किलोमीटर्स टोटल डिस्टेंस आ जाएगा कवर्ड बाय द बर्ड. नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7. Radha is drawing a dot rangoli, a beautiful pattern of lines joining dots with chalk powder. She has 9 dots in a row. एक रो में 9 dots हैं. It is exactly same as the cadets. How many dots will her rangoli have for r rows? मान लेते हैं r rows हैं, मीन्स 10 rows हैं, हर एक रो में 9 dots हैं, तो टोटल कितने dots बनाने पड़ेंगे? टोटल 90 dots. So I'll show you a dot rangoli first of all. They have shown you in the figure also, but I'll show you once again. So here it is a dot rangoli. What they are saying, that she is making 9 dots. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dots उसने बनाए हैं यार. तो एक रो में 9 dots हैं, तो टोटल कितनी रोज हैं? 1 2 3 4 5 6 7. 7 रोज में कितने डॉट्स बनाने पड़ेंगे उसे? 9 इंटू 7, yes, 63 dots. हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया. सो इन द सेम वे विल डू इन द क्वेश्चन. तो आपको बोल रहे हैं उसने कितने डॉट्स बनाए? डॉट्स इन ईच रो इज इक्वल टू 8. सॉरी, 9 डॉट्स उसने बनाए हैं एक रो में. नंबर ऑफ रोज कितने हैं? आर. तो नंबर ऑफ डॉट्स इन आर रोज में कितने होंगे? तो हमने क्या किया था? मल्टीप्लाई. तो 9 इंटू आर. नंबर ऑफ रोज इन 8, नंबर ऑफ डॉट्स इन 8 रोज में कितना होगा? 8 मल्टीप्लाइड बाय 9. 9 मल्टीप्लाई इस, यहाँ पर आर क्या थी? रोज थी. आर क्या थी यहाँ पर? नंबर ऑफ रोज. तो 9 इंटू आर किया था. अब हमारे पास रोज हैं 8 और 8 में कितने हैं? 9. तो 9 इंटू 8, व्हाट डू वी गेट? वी विल गेट 72 डॉट्स. और अगर हमारे पास 10 रोज हैं तो 9 इंटू 10 will get 90 dots. So it is very simple how to do these questions. I hope it is clear to you. Very understood. Now let's move on to next question. Now dear students, question number 8. Leela is Radha's younger sister. Means Leela Radha की छोटी sister है. Leela is 4 years younger than Radha. कितनी छोटी है वो? 4 साल छोटी है. कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधाज एज? तो जिसकी एज के टर्म्स में हमें लिखना होता है उसकी एज को हम एक्स मान लेंगे. सो टेक राधाज एज टू बी एक्स ईयर्स. सो वी विल राइट इट एज लेट राधाज एज इज इक्वल टू, राधाज एज इज इक्वल टू कितने ईयर्स मान लेंगे? इट इज़ एक्स ईयर्स, क्योंकि आपको पता है हम एज हमेशा ईयर्स में देते हैं. इसके बाद हमें बोला है लीला की एज, देयरफॉर लीलाज एज. क्या बोला है? लीलाज एज इज के लिए बेटा हमेशा क्या आएगा? इज इक्वल टू. इसके लिए हमेशा क्या होता है? इज इक्वल टू. लीला इज 4 ईयर्स, तो हम 4 लिखेंगे. यंगर, जब छोटे के लिए हम माइनस करते हैं, अगर ओल्डर होता तो यहाँ प्लस साइन आता. तो लीलाज एज इज, इसके लिए हमने क्या लगाया? इज इक्वल टू 4 ईयर्स यंगर. यंगर के लिए होता है माइनस. देन राधाज एज, तो राधा की एज यहाँ हमारे पास कितनी है? हम वो लिख देंगे. तो लीलाज एज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? लीलाज एज इज 4 ईयर्स यंगर देन राधाज एज. और राधा की हमने एज कितनी मानी थी? इट इज़ एक्स. तो लीला की एज कितनी आ गई? x माइनस 4 ईयर्स. कितनी आ गई? x माइनस 4 ईयर्स. दिस विल बी द आंसर, राइट. तो इज़ के लिए हमेशा क्या लिखना है आपको? इज इक्वल टू. तो जब भी इज आएगा उसके लिए इज इक्वल टू, यंगर के लिए माइनस, ओल्डर के लिए प्लस साइन होता है. ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मदर हैज़ मेड लड्डूज. शी गिव some laddus to guests and family members. Still 5 laddus remain. कुछ लड्डू बनाए मदर ने, फैमिली में दे दिए और गेस्ट को खिला दिए. अब एंड में कितने बचे हैं? 5 laddus. If the number of laddus made by the mother is L,
हाउ मैनी लड्डूज डिड शी मेक, तो कैसे लिखेंगे इसे, तो इसे भी हम लिखेंगे लेट द लड्डूज मेड बाय मदर. मेड बाय मदर इज इक्वल टू L, सॉरी, लेट द लड्डूज गिवन बाय मदर, यहाँ लिखेंगे मेड तो अभी हमें निकालना है कितने बनाए, गिवन बाय मदर टू गेस्ट एंड फैमिली मेम्बर्स, एंड फैमिली मेम्बर्स वो कितने हैं, देयर आर L लड्डूज दे दिए हैं फैमिली मेम्बर्स को, गेस्ट को, एंड लड्डूज रिमेनिंग लड्डूज कितने हैं, रिमेनिंग लड्डूज विल बी इज इक्वल टू, लड्डू कितने बच गए हैं उसमें, तो हमारे पास दे रखा है 5 लड्डूज आर लेफ्ट. तो अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ लड्डूज, तो वो कैसे आएगा, देयरफॉर टोटल लड्डूज मेड बाय मदर इज इक्वल टू टोटल लड्डूज मेड बाय मदर इज इक्वल टू, कितने आ जाएंगे, इतने तो हैं जो बांट दिए प्लस इतने जो बच गए, तो दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो विल गेट द टोटल नंबर ऑफ लड्डूज मेड बाय मदर. मान लेते हैं 15 लड्डूज बांट दिए, 5 बचे हैं, तो 15 + 5 20 लड्डूज मदर के पास बच गए, टोटल बनाए थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Oranges are to be transferred from larger boxes into smaller boxes. अभी किस में पैक हैं, बड़े बॉक्स में ट्रांसफ़र करना है स्मॉलर बॉक्स में. When a larger box is emptied, the oranges from it fill 2 smaller boxes. कि जब यहाँ से ट्रांसफ़र किए तो बड़े बॉक्स से छोटे में डालते वक्त 2 बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ी, एंड स्टिल 10 ऑरेंजेस रिमेन आउटसाइड, और 10 ऑरेंजेस अभी भी बॉक्स के बाहर रह गए. इफ़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी X, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स. So what do we write? Let the number of oranges in small box be X. और कितने बॉक्स यूज़ कितने बॉक्स यूज़ हुए हैं हमारे, 2 स्मॉल बॉक्सेस, और रिमेनिंग भी कितने हैं, रिमेनिंग ऑरेंजेस भी बताएंगे हम कितने हैं. लेट अस राइट डाउन दैट थिंग ऑल्सो. ऑरेंजेस लेफ्ट इज इक्वल टू 10. तो बेटा हमारे पास अगर ऑरेंजेस स्मॉलर बॉक्स में X हैं और 2 बॉक्स में हैं, तो टोटल ऑरेंज कितने हो गए, 2X, तो वो हो गए जो बॉक्स में हैं, प्लस 10 जो रिमेनिंग है. तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन बिग बॉक्स इज इक्वल टू 2X + 10. दिस यू कैन सी थ्रू दिस पिक्चर ऑल्सो दैट हेयर इज़ अ बिग बॉक्स, इसके अंदर ऑरेंजेस हैं, एंड व्हेन दीज ऑरेंजेस वर ट्रांसफर्ड इन द स्मॉल बॉक्सेस, तो इसमें सारे ऑरेंज नहीं आ पाए, 2 बॉक्सेस हमें कंप्लीट फिल करने पड़े, उसके बाद भी 2 बॉक्सेस के पास हमारे पास ये 10 ऑरेंजेस हैं जो अलग रह गए. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के लिए 2 बॉक्सेस आर देयर, सो 2 × X + 10 oranges. So through this you can understand. Now dear students, here is question number 10. Look at the following matchstick pattern of squares. The squares are not separate. 2 neighboring squares have a common matchstick. Observe the pattern and find the rule that gives the number of matchsticks. तो हम देख रहे हैं dear students, in the first figure 4 matchsticks are there. In second figure 2 boxes are there, and 1 2 3 4 5 6 7 matchsticks are there. In this 10 matchsticks are there, and here there are 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 matchsticks are there. So how to make the rule, let me show you. So dear students, like one matchstick, this is 2, this is 3, this is 4, 1 2 3 4 matchsticks हमारे पास हैं ये. And this I'll continue in our next video. To watch this question, watch my next video. That's all for now. Thank you.